Hello, you're watching the network Connecting State in One News. I'm Atar Bengia. So today we welcome you all to an inspiring session where we celebrate the journey of an extraordinary woman who has not only revolutionized the beauty industry in India but has also put Arunachal Pradesh on the global map of excellence. Today we shine on Tamchi Kache, the founder and CEO of Lush Bro Academy located in 0 Point Tenali of Itanagar. Well, talking about Tamchi Kache, she is the pioneer of beauty industry in Arunachal Pradesh. Well, talking about Tamchi Kache, she is a visionary leader in beauty and beyond. She is much more than an entrepreneur. She is a beacon of women empowerment, a phenomenal woman and innovation. As India's top permanent makeup, that is PMU, she excelled as master educator. Tamchi is transforming lives by blending artistry and science and semi-permanent makeup and skincare. Her expertise as an internationally certified cosmetologist, Korea and India, and certified master PMU pigmentologist, Thailand, underscores her commitment to global standards of excellences. Adding to her accolades and achievement, she has founded her own line of premium beauty products. Well, talking about the achievement that inspire a nation in general and Arunachal in particular, Tamchi Kache is not just a leader, she is a trailblazer. Her milestone includes representing India as a top master demonstrator held at Dubai and India in the year 2024 last. A moment of pride for nation in there. Serving as an honorary jury judge at Grand PMU India in the year 2024 last, cementing her position as a thought leader in her field, and additionally becoming the first Indian PMU master to win the prestigious Global PMU Award in Bangkok, Thailand during the year 2023 last, achieving another milestone as the first Indian to join the USA-based Society of Permanent Cosmetic Professionals, that is SPCP, and to earn the Certified Permanent Cosmetic Professional, that is CPCP credential, a testament to her dedication to setting global benchmark. Talking about her testament to passion and beauty, Lush Bro Beauty Academy is one of the most significant creation of Tamchi Kache, a woman whose passion and gathered knowledge in the beauty industry have redefined the structure of innovation. Tamchi crafted this academy as a beacon of empowerment where creativity meets professionalism. Well, the vision of Lush Bro Beauty Academy, founded in the year 2018, stands as a testament of Tamchi Kache's vision of empowering the aspiring beauty professionals with the skills to meet international standards. While talking about the Lush Bro Beauty Academy, each service is tailored to individual needs, combining advanced technology, medical grade equipments, and holistic approach to the health and beauty. Empowering women through beauty, Tamchi Kache's journey is a story of resilience, ambition, and unwavering determination. As a pioneer in the beauty industry from Arunachal Pradesh, she is empowering countless women by providing them with the tools and training to excel. Her work is not just about beauty, it's about confidence, self-expression, and breaking the barriers. So today we celebrate Tamchi Kache, a phenomenal woman, a leader in her craft, a true inspirational woman to everyone. She reminds us that with vision and determination, the sky is not just the limit, it is just the beginning.
Hello, you're watching the network Connecting State in One News. I'm Atar Bengia. So joining with me today is a phenomenal woman, very talented, very beautiful, gorgeous, a woman with great personality, beauty with brain, none other than Tamchi Kache. She is the pioneer of permanent makeup industry of Arunachal Pradesh, and she is also the CEO and founder of Lush Bro Beauty Academy. So first of all, ma'am, welcome to the network. Thank you. And well, you have represented India as the first master demonstrator held at Dubai in the year 2024, additionally becoming the first Indian PMU master to win prestigious global PMU award in Bangkok, held in Thailand during the year 2023, achieving another milestone as the first Indian to join the USA-based Society of Permanent Cosmetic Professionals and to earn certified permanent cosmetic professional credential. So ma'am, how it feels having achieved tons of accolades and achievement hailing from Arunachal to the global platform in the realm of beauty industry. Tell us about your journey, your achievement from winning in Thailand and another set of achievement in Dubai. Thank you so much for coming, and thank you so much for your lovely words to me. About my achievement, first of all, I want to thank to myself that I never gave up, though it was very challenges for me and it was not easy for me. And जो मेरा जर्नी था, जो परमानेंट मेकअप में स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट किया था, मेरा जो करियर है, शुरुआत में इंडिया में परमानेंट मेकअप ना के बराबर था, नहीं था, लेकिन स्लोली अभी धीरे धीरे इंडिया पे ग्रोइंग हो रहा है। परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री का धीरे धीरे हो रहा है, बल्कि बाहर कंट्री में ये परमानेंट मेकअप बहुत सारा पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पे है, बट इंडिया पे भी धीरे धीरे आ रहा है परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री जो कि है बहुत अच्छा है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी दैट टाइम इन इंडिया बहुत कम ही था इंडिया पे जो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट लोग था, लेकिन मैंने जो अपना टेक्निक्स ट्रिक्स मेरे अपना स्किल को मैं कंटिन्यू सही प्रॉपरली मैं करते गया। फिर धीरे धीरे जब स्लोली अपग्रेड होते गया, फिर मैंने देखा बाहर कंट्री में बहुत सारा कंपटीशन जो होता है चलता है, ये सब परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री में होता है बाहर कंट्री पे, जो कि इंडिया पे उतना आइडिया नहीं है। तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इस कंपटीशन में एक बार जाके देखूँ, पूरा कंट्री से आता है, उसमें भी मैं कंपटीशन में भाग लेके देखूँ। फिर मैं गया, उसके बाद उस दौरान मुझे एज ए विनर मुझे मिला है, जो 3rd प्लेस पे मुझे मिला था। तो फिर मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट और हुआ कि अरे यहाँ तक पहुँच के अगर मैं विनिंग बन सकती हूँ तो आगे और क्यों नहीं कर सकता। इस तरह मैं खुद को और मतलब मोटिवेट खुद से किया, और धीरे धीरे मैं अपना यहाँ अरुणाचल पे मैं धीरे धीरे अपना स्किल को और मतलब अपग्रेड करते गया। फिर धीरे धीरे इंडिया पे जैसे मैंने बताया, इंडिया पे बाहर अभी धीरे धीरे परमानेंट मेकअप जो अपग्रेड इंडिया पे हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिया पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2024 पे, जो एक ग्रैंड PMU इंडिया बोल के एक बाहर कंट्री से बहुत सारा मास्टर लोग भी आया था, ग्रैंड मास्टर लोग भी आया था। तो उसमें मुझे पहचाना, वो लोग मुझे नोटिस किया कि शी इज़ डूइंग ग्रेट, एंड क्यों ना उसको बुलाऊं, कि जिस तरह मैंने पहले कंपटीशन में गया था इसी तरह एक कंपटीशन वहाँ पे था, उसमें मुझे जज के लिए बुलाया था। तो मल्टीपल वो लोग ये करने के बाद फिर हमने सोचा कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं जाऊं। और उसने बोला कि आपका जो अभी टेक्निक्स है उसको भी एक एज ए डेमोन्स्ट्रेटर अभी हमारा यहाँ इंडिया वालों को दिखाओ और बाहर वाला लोग भी देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा खुशी था कि उस कंपटीशन उस जज 2023 कॉन्फ्रेंस में जिससे मैंने सीखा था, वो भी एज ए जज के लिए भी आया था, बाहर थाईलैंड से था, और मैं भी एज ए जज के लिए गया। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुद का प्राउड मोमेंट था मेरे लिए ना, कि जिससे मैंने सीखा था उसी का साथ में टेबल में बैठ के जजिंग कर रहा था। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और मोटिवेट मुझे मिलते गया, और मुझे करना है, और मुझे स्पेशली ट्रेनिंग्स में भी कुछ भी मिला, और मुझे अपना वर्क को और ज्यादा अपग्रेड करना है। और साथ ही साथ इन 2024 पे फिर से मैंने सोचा
कि इंडिया पे तो मैं एज ए जूरी जज के लिए रहा हूँ, और उसके बाद टॉप डेमोन्स्ट्रेटर एज ए ग्रैंड डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मैं गया। आफ्टर दैट फिर मुझे एक इनविटेशन आया था जो कि है दुबई पे था। तो मुझे उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि तामची, मास्टर तामची, कि आप एज ए टॉप डेमोन्स्ट्रेटर के लिए इंडिया के लिए रिप्रेजेंट के लिए आ सकता है कि मुझे पूछा है। तो हम लोग डिस्कस कर रहा था उसके बारे में, जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन बाद में लगा कि मुझे जाना चाहिए। फिर मैं उस पे फिर दुबई पे चली गई। फिर वहाँ गया और जाने के बाद में मुझे एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करते हुए मुझे खुद बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था खुद को, क्योंकि जिस तरह मैं वहाँ पे वर्क वालों को मेरा टेक्निक को शोकेस किया, बाकी कंपनी में से मेरा बहुत अच्छा था। तो ऐसे करते हुए और वहाँ जाने के बाद में मुझे लगा कि ये PMU इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, हर कंट्री में, हर एवरी कॉर्नर में ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट उस दौरान मुझे बहुत कुछ भी सीखने मिला कि अरे इतना PMU में इतना वास होता है, लोगों इतना डेडिकेटेड है इसका बारे में। और इसको लेते हुए एक स्पीकर आया था, वो फिलीपीन का था, बट वो अभी सेटल हो गया न्यूयॉर्क सिटी पे। वो फिलीपीन से एक छोटा सा जगह से न्यूयॉर्क में कम से कम उसका अराउंड 6 to 7 उसका खुद का क्लिनिक है, परमानेंट मेकअप क्लिनिक है। तो और मोटिवेट करता है, अरे लोग ऐसे कर रहा है तो अरे हम भी क्यों नहीं कर सकते, ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन और आया। और मतलब ये ऐसे करते लगे कि परमानेंट मेकअप जो हम लोग का इंडस्ट्री जो बहुत ही अच्छा एक करियर मैंने अभी मैं सोच रही हूँ, बहुत अच्छा करियर मैंने चॉइस किया। और आने वाला टाइम में मैं अपना स्टूडेंट को पहले जो मैंने सिखाया है और अच्छे से सिखाया है, और मैं अभी जो सिखाऊंगी और अच्छे से सिखाऊंगी। और स्पेशली अपना क्लाइंट को अभी तक कोई भी कंप्लेन वाला नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा, कोई बोलने आज तक 5 इयर्स का एक्सपीरियंस में, 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस में कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक का टाइम में। वो मेरा जर्नी था कि अभी तक का मेरा अचीवमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। साथ ही साथ एज ए जूरी जज अपना मेंटर का साथ में ही फिर जूरी जज बनना और लोगों को एक्सपेक्ट करना, दुनिया को देखना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है। मैम, जैसा आपने अपना जर्नी शेयर किया, इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग बिकॉज यू नेवर गिव अप। एंड आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो आपका मेंटर था, बाद में जाके आप उसके साथ ही जूरी जज करके बैठा है, एंड देन दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू। सो मैम, व्हाट सेट्स योर अप्रोच टू PMU अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन द ब्यूटी इंडस्ट्री? जो PMU है उसके बारे में हमें थोड़ा और बताइएगा। वेल, फॉर मी क्लाइंट सेफ्टी इज माई utmost प्रायोरिटी, क्योंकि सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल स्पेशली इन परमानेंट मेकअप। लाइक मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि ये परमानेंट मेकअप में नीडल यूज होता है, स्किन प्रिकिंग होता है। तो हम जो हमेशा यहाँ पे एम्फसाइज करता है कि हम प्रोफेशनली हम प्रोसीजर को हम यहाँ मेंटेन से करते हैं। साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि सर्विस लेके सुंदर तो बन जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि सेफ्टी मेजर का साथ में आपको करना है। कहीं भी आप अगर सर्विसेज लेता है, स्पेशली इन परमानेंट मेकअप में आप करता है, तो सेफ्टी मेजर के साथ में आप लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारा चांसेस है कि एक दूसरा बीमार लग सकता है, स्प्रेड होने वाला। जिस As you have emphasized the importance of safety in PMU, that is permanent makeup, particularly about the blood-borne pathogen training, why is this such a critical aspect of your work? Well, जैसे मैंने आपको बताया था उसका बारे में, सेफ्टी मेजर के साथ में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। लाइक हम यहाँ जब ट्रेनिंग्स में बोलो और सर्विसेज में बोलो, सबसे पहले हम क्लाइंट कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन करने की बात ही प्रोसीजर हम यहाँ करते हैं। स्पेशली ट्रेनिंग का टाइम में हम अपना स्टूडेंट को एडुकेट करता है बीबीपी ट्रेनिंग्स के बारे में। जिसे बीबीपी मतलब ब्लड बोर्न पैथोजन, जो ब्लड बोर्न पैथोजन है उसको अगर प्रॉपरली एक प्रोफेशनल से आप सही तरह से आप उसको प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करने से एक दूसरा बीमार जो फैलने का चांसेस बहुत रहता है। उसको देखते हुए हम हमेशा अपना यहाँ क्लाइंट्स को भी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री पूछ के, उसका हेल्थ इशू को पूछ के, तभी हम क्लाइंट को
ये करते हैं, प्रोसीजर पे हम आगे ले जाते हैं। और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स में भी हम वही एडुकेट करता है कि एवरी PMU आर्टिस्ट को BBP ट्रेनिंग्स लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको सारा सिखाया जाता है कि आप खुद को कैसे सेफ्टी मेजर के साथ में करना है और क्लाइंट को भी कैसे आप वो हाइजीन मेंटेन करते हुए करना है, वो सारा चीज़ जो उस पर सिखाया जाता है। और जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स जब देती हूँ, मैं सारा ये सारा चीज़ डिटेल्स को मैं मेरा अपने स्टूडेंट को मैं सिखाती हूँ। ट्रेनिंग पे मैं साथ में दिया जाता है। और साथ ही साथ ये सब जो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है जो भी PMU आर्टिस्ट है जो यहाँ पे भी जो सर्विसेज इंटायर अरुणाचल पे देता है, कहीं में भी आप सर्विस प्रोवाइड करता है तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए, प्रॉपर स्टरलाइजेशन करते हुए, और जो प्रोटोकॉल है जो परमानेंट मेकअप में करते हैं वो सब क्लाइंट को चेक करके, क्लाइंट का हेल्थ इशू को चेक करके वो करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज होता है वो ओल्ड एज का साथ में वो ये होता है डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ वाला को जो कंट्रोल में नहीं होता उसको नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्लाइंट भी आता है जो डायबिटीज पेशेंट होता है, वो कर लेता है लेकिन उसको हीलिंग होने में टाइम लग जाता है। किसी का हीलिंग नहीं होकर इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारा केसेस भी ऐसे हमने देखा है। तो ये सारा प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो नीडल आप यूज़ करते हैं वो नीडल को आप दोबारा कभी यूज़ नहीं होना है। एक ही ग्लोब यूज़ करना है, वही ग्लोब को आप एक ही क्लाइंट पे यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आगे BBP ट्रेनिंग्स के बारे में, और ये ट्रेनिंग्स में हम स्टूडेंट को एडुकेट करते हैं, साथ ही साथ हम भी कुछ सीखते हैं उसी BBP में ट्रेनिंग्स में। और उसी पे क्या होता है कि BBP ट्रेनिंग्स में हम सिखाया जाता है और लोगों को भी जानना जरूरी है कि इसमें स्किन पेनिट्रेशन होता है, साथ ही साथ नीडल प्रिकिंग होता है। तो इसलिए उस नीडल प्रिकिंग और स्किन पेनिट्रेशन में आपको एक दूसरा बीमार लगने का चांसेस बहुत रहता है। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले जो आर्टिस्ट है जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो प्रॉपर अपना क्लाइंट को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए करना है। और साथ ही साथ जो सर्विस ले रहा है उसको वो भी पता होना चाहिए कि जहाँ से भी करवा रहा हो वो एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड PMU आर्टिस्ट से ही करवाए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, every PMU artist must know about proper disposal of needles, maintaining hygiene, proper sterilizing protocol, handling equipments, and wearing PPE kit. Ma'am, since you have achieved a lot in this particular field, so what is your future endeavor or the future goal in the field of a permanent makeup industry? Well, my goal is to position Arunachal Pradesh, India as a global leader in PMU beauty industry. And lastly, my message to everyone as an entrepreneur and as a educator in permanent makeup, be independent, don't depend on other. मेहनत करो, जो भी प्रोफेशन में है मेहनत करो और आगे बढ़ो। Ma'am, it was amazing having known your journey and your experience, and thank you so much for joining with the network. Thank you so much.